ابلیس، میں ہوں ابلیس، دھتکارا ہوا نکالا ہوا، تکبر کرنے والا اور زبان سے پھرنے والا، عرش سے زمین پر پٹک دیا گیا، پستی میں دھس دیا گیا۔ اب مجھے اس کے خاتمے تک مہلت دی گئی ہے۔ سن لے مجھے اپنی قسم ہے اے آدم ابو البشر، زمین پر میری جتنی بھی مہلت ہے، آرام سے نہیں بیٹھے گا یہ ابلیس۔ نیکی سے پہلے فرزندان آدم کو فریب دے کر گناہوں میں جکڑ دوں گا، انہیں جہالت میں گمراہ کر دوں گا، جہالت میں، شیریں جہالت میں۔ اے میرے عظیم اور مہربان خدا، نمرود کے بعد تیرا ہی بلند مقام ہے، تیرا ہی۔ کون ہے تو؟ کون ہے؟ کیا چاہتا ہے اس بت خانے میں؟ بابل کی سرزمین نمرود ابن کوش کی فرمانروائی کا سب سے عظیم مرکز تھی، جو اس دور کے چند بڑے شہروں میں شمار ہوتا تھا۔ اس بڑے شہر کا نام اور وجود حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت سے 4 صدی پہلے صفحہ تاریخ سے مکمل محو ہو کر زمین بوس ہو گیا تھا۔ اس دور کے لوگ چھوٹے آشیانوں کی پوجا پاٹ کے سخت مخالف ہو گئے تھے اور صرف نمرود کو ہی خداؤں کا خدا سمجھتے تھے۔ بابلیان، بابلیان، او بابلیان، تمہیں قسم دیتا ہوں خداؤں کے خدا نمرود کی، میرے پاس بھی ایک ایسا خدا تھا جس کی میں جھاڑ پہنچ میں مصروف تھا۔ میں اس پر پیار سے ہاتھ پھیر رہا تھا کہ غبار جھاڑتے ہوئے اچانک ایک ضرب لگی اور میں اب تک لانتی بن گیا۔ راستہ دو، ہٹ جاؤ راستے سے، خداؤں کا سندگر، آزر بت تراش، اس مسئلے کا علاج آ گیا ہے، چھوڑ دو راستہ۔ جب بیابانی پتھر سے بت تراشا جاتا ہے اس سخی اور ماہر بت تراش رہنما کے ہاتھوں سے، تو بابل کے بڑے بادیوں کے مقدر بدل جاتے ہیں، کالے بادل چھٹ جائیں اور بابل کی فضا نور سے منور ہو جائے۔ کیونکہ آزر قلم تراشی کریں گے ان خداؤں کے خدا کے پیکر پر، اسی وجہ سے تو تمام خداؤں کے خدا نمرود انہیں چاہتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں۔
میرے ہاتھوں بنایا ہوا نہیں یہ بت، یہ بت تراش اویس کا کام ہے۔ تو ایک خوش گفتار اور خوش کلام شاعر ہے، ماہر بت تراشوں نے تیرے کلام کے ذریعے بھی خدا بنائے ہیں، تیرے کلام کی شان و شوکت کے مطابق۔ ہٹ جاؤ، جھک جاؤ، راستہ چھوڑو، جھکو، احترام کرو۔ دیدے پھڑ کر اس نمرود کو دیکھ رہا ہے جس نے میری قدر کو نہ جانا۔ میں اویس اس نے آزر کے بتوں کو زیادہ اہمیت دی، اسے عزیز جانا۔ نمرودیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا ہوگا؟ کن کے ساتھ؟ ابراہیم نے سجدہ نہیں کیا۔ کس کو؟ حالانکہ وہ آزر بت تراش کا بھتیجا ہے۔ ابراہیم نے سجدہ نہیں کیا، لے گئے اسے بابا، وہ لے گئے اسے۔ جو بھی سجدہ نہ کرے سزا پاتا ہے۔ لوط، تو نے ابراہیم کو دیکھا؟ گرفتار کر کے لے گئے اسے۔ میرے بیٹے ابراہیم، اس اندھیری کوٹری کی فصیلیں زیادہ آرام دہ تھی چچا کے گھر سے۔ میں کیوں سجدہ کروں اس بندے کا جو مجھ جیسا ہے، ایک ہی ہڈی اور گوشت کا؟ خاموش رہو ابراہیم، تمہاری زبان کے تلخ نشتر نے ان نمرودیوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ مجھے ڈر ہے اس کے بعد آزر کا کیا دھرا بھی کام نہیں آئے گا۔
आखिर क्यों तूने मेरे बेटे से बुत तराशी करवाई? उस रोज जब तूने एक गनी बेटे के राज से मुझे आगाह किया, मैंने इसे इसलिए काम पर लगाया क्योंकि मेरे तमाम बेटों में से इसमें तराशकारी का हुनर मौजूद था। क्या हुनर है! वाह, कितनी खूबसूरत तराशकारी की है। काश तेरा बाप तारुक जिंदा होता और देखता कि कितनी ज़राफत से तराशा है। तू मेरे बेटों से तेज तराशकार है। तराशते रहो, तराशते रहो, तराशते रहो कि तू ही मेरा जानशीन होगा। ये क्या किया तूने? तुम्हारे किस काम आता है? पूछते हैं इसको। पत्थर को? उसी की पूजा करते हो जिसे अपने हाथों से तराशते हो? तू आजर का भतीजा और सहारा है, चचा के साथ। अब तू तराशेगा नहीं, बेचेगा। बाबिल के बाजार में बेचेगा, खुदाओं का बाजार लगाएगा तू। बुत ले लो, रंगारंग तराशा हुआ, सस्ते और महंगे, ना किसी के लिए नुकसानदेह हैं और ना मुफीद। ले लो, बुत ले लो, सस्ते भी हैं और महंगे भी, मुझसे खरीदें, क्योंकि आपके लिए ना मुजिर हैं ना मुफीद, सस्ते और महंगे। आए आए खरीद लें, आए मुझसे खरीदें, ना आपको नुकसान पहुंचाएंगे और ना फायदा। आए सौदा कर लें। इब्राहिम, मैं तुम पर हक के बिदरी रखता हूं। मोहब्बत से पाला है, चाल से पाला है। तुम्हें मैंने सोचा था गनी हो जाओगे और इस खुदसाजी की सनत के सरवर और सालार बनोगे, न कि इसकी आफत और बला। इन पत्थरों से तराशते हो, इन्हें तराशो, इन्हें तराशो। अपनी शराफत, होशियारी और खूबसूरती से इन्हें तराशो। अपने गनी हाथों से मैं चाहता हूं इन सख्त पत्थरों को मोम की तरह नरम और मुलायम बना दो। अपने इन हाथों से तराशो। ये हाथ किसने बनाए हैं? मैंने तुझे महंगे दामों के एवज बाजार से खरीदा है, फिर भी मैं तुझ पर कादिर हूं। मैं हूं तेरा खुदा, तुझे झुकना पड़ेगा। चल झुक। तू बाबलियान के लिए खुदा है, मेरा तो खुदा नहीं है। झुक जा, चल झुक जा। नमरूद मौसम का तख्त। ये तख्त नहीं है, जहालत है। नमरूद ऐसे तख्त का सहारा नहीं लेता, तो जहालत का निशान।
तो ज़हीन है, लेकिन बाबलियान की जहालत जानने की हद तक, उतने अरसे तक जब तक ये लोग अपनी जहालत में बाकी हैं, खुदाई हुकूमत से भी आगे हम इनकी जहालत पर हुकूमत कर सकते हैं। अपने बंदों की जहालत पर काबू रखो। आजाद हो गए। हाँ, नमरूद के जुल्म का असीर आजर की मदाखलत पर आजाद हुआ। डरते नहीं? मुमकिन है कि वो नमरूद का जासूस हो। नमरूद के जासूस मेहरबान नहीं होते सारा। तुम्हें कैसे पता सारा की मेहरबानी? नमरूदी कमजोर लोगों को नहीं पकड़ते। ये शाकार आजर है, मेरे ये हाथ मोइज़ागर हैं। नमरूद अगर तुझे एक बार देख ले तो अपनी सारी खुदाई भूल जाए। चमका दो इसे। लूत क्या हुआ? कुछ दिनों से पहाड़ों पर गया हुआ है इबादत करने के लिए। इबादत, इबादत, इबादत। इब्राहिम मेरा भतीजा है, लेकिन मुझसे नहीं। मैं खेतों की तरफ जा रहा हूं, शायद लौट गया हूं। तू नमरूद की आंखें बर्बाद, आजर के उस बुत को नमरूद की दरगाह में मकलूब कर दोगे, ना कि महफूज। तूने वादा किया था कि आजर के हाथों बनाया हुआ वह बड़ा बुत हरगिज़ बुतखाने तक नहीं पहुंचेगा। वो बुत जो मैंने बनाया था उसे नमरूद की नजर में बढ़ाओगे। बहुत मुश्किल है उबैस। उस दिन जब तू नमरूद के दरबार से निकाला गया था, आजर को खुदाओं की सनतगरी का तमगा बाबिल के फरमा रवा से मिल गया था, और यही हकीकत भी है उबैस। नहीं नहीं, जान लीजिए, वो चीज जो मैंने उस दिन देखी थी अगर नमरूद पर जाहिर कर दूं तो बड़े बड़े दिन तुझ पर आ जाएंगे। मुझे धमकी मत दे उबैस। अगर तूने जबान खोली जिंदा दर्द कर दूंगा, ताकि आइंदा किसी भी चीज को न देख सके तू। इस बात का भी सोच रखा है मैंने। तेरे राज एक अमानतदार को बता दिए हैं। ये भी बता दिया है कि उस दिन जब मैं किसी के हाथों कत्ल हो जाऊं, नमरूद तक इस बात को पहुंचा देना। नहीं भूल सकता वो दिन जब मैं शिकार के लिए जंगल की तरफ गया था। पता है दरख्तों की ओट से मैंने क्या देखा? एक घोड़ा ऊंचे कद का। आज तो बोल। ठीक है, आजर का बुत बाबिल के बुतखाने तक नहीं पहुंचेगा। अब जाओ बैस, यहां से चला जा। बहुत अच्छा बर्बाद, बहुत अच्छा। बर्बाद। उबैस, बुत्तराश हमारा राज नमरूद पर फाश कर देगा अगर उसके असल रकीब आजर बुत्तराश को मैदान बदल ना किया हमने। अगर कहो तो उसे भी मार दे।
और नमरूद को भी। ऐ मेरे अल्लाह, इन लोगों के अमालों पर गौर किया, देखा तूने ये सब बुत परस्त हैं, भटके हुए। सुन रहा है? तुम्हारे हाथ में हमारी तकदीर है, तुम हमारी मदद करो, हमारी सरजमीन को बरकत अता करो। हम ऐ चमकदार अक़साम खुदाई करती हूँ इन बंदों पर। ऐ दश्तो दरिया पर फैले हुए आसमानी सितारों, हमारे मुस्तकबिल के मालिक, हमारी जान और माल के मालिक, तुम ही हो हमारे मुल्क मालिक और हमारे जहां के मालिक। हम सब बंदों की फरियाद सुनो। किसकी परस्तिश करते हो? तेरे वजूद से हमें तकलीफ हो रही है, जा चला जा यहां से। कौन से अजसाम की परस्तिश कर रहे हो? हालांकि इस दोपहर के वक्त आसमान पर कोई सितारा नहीं। मैं इबादत करता हूं उसकी जिसका जलाल इनसे भी मुनव्वर है। हम तुम्हारे लुत्फ और करम के मोहताज हैं। ऐ बड़े सितारों, तुम्हारे हाथ में हमारी तकदीर है, हमारी सरजमीन को बरकत अता करो। हम तुम्हारे लुत्फ। ऐ ज़ोहरा, मेरे खुदा पर कौन सी बला आ गई? क्यों गुरूब हो गया? क्यों महताब की रोशनी इस पर हावी हो गई? नहीं, मैं अब ज़ोहरा की इबादत नहीं करूंगा। अब चांद है मेरा खुदा, इससे भी अजीम तर और नूरानी। क्या चाहते हो इन अक़साम परस्त बंदों से? जा यहाँ से चला जा, दूर हो जा। मैं भी इन्हीं बंदों में से हूं, गुरूब हो गया। चांद भी गुरूब हो गया। अब ये जलता सूरज इन बंदों पर हाकिम है। दूर हो जा, जा दूर हो जा, दूर हो जा। सूरज भी ज़ोहरा और चांद की तरह गुरूब हो गया। ये कैसे खुदा हैं जो गुरूब हो जाते हैं? मैं उस खुदा की इबादत करता हूं जो कभी फना नहीं होता। मेरे खुदा आसमानी अजसाम नहीं, खुदा यानी हमेशा बाकी, ना के फानी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सालों तक बुत परस्तों को हिदायत दी। आग के खुदा की तरफ ले जाऊंगा इन्हें। वो सितारों की परस्तिश करते थे, आसमानी अजसाम की एक मलून के कहने पर। सुनो, मैं तेरी कुर्बानी करता हूँ खुदाओं की राह में, इसलिए कि इस बच्चे के पैर से खुदाई बुत टूट गया। ये वहां से जा रहा था कि इसका पैर बड़े बुत से टकरा गया और वो वहीं बिखर गया। ये कैसा खुदा है जो अपने आप को भी संभाल नहीं पाता और एक बच्चा उसे यूं खाड़ दे? पता नहीं कि अब मेरा नया खुदा ये टूटा हुआ खुदा है या वो जिसे मेरे बेटे ने तोड़ डाला। आखिरकार तमाम मखलूक तुझे ही आलम का मुदब्बिर जानती है। कोई शक नहीं, तू ही हस्ती का मुदब्बिर है। सब जगह हाजिर नाजिर, हाजिर नाजिर, हर जगह तेरा वजूद। क्यों इनकी जहालतों को वाज़ेह नहीं कर देता? मैं जानता हूं तू है, तू मौजूद है, तू कादिर मुतलक है। फिर कुछ बोल, कोई निशानी दिखा। मेरी बात सुन रहा है, मेरी आवाज सुन रहा है, मेरी सदा पहुंच रही है।
जवाब नहीं दिया इब्राहिम, मेरा साथ दे। मेरी मदद कर कि इसका साथ न दूं। मैं जिब्राइल हूं, परवरदिगार का पैगाम अल्लाह ने तुझे रिसालत के लिए मुंतखब किया है ताकि अक़वाम बशर तक उसका पैगाम पहुंचा सके। वो जो शिर्क करते हैं और इनकार करते हैं परवरदिगार की फरमारवाई और वजूद में लाने वाली रबूबियत का, वो गुमराही की राह में भटक गए। इस आवाज के जरिए ऐ इब्राहिम, खुदा के पैगंबर, तुझे हम सलाम भेजते हैं। अगर आजर का बुत यहाँ आया तो नमरूद को सब कुछ पता होगा। मैं खुदाए वाहिद की तरफ से भेजा गया हूं तुम पर, कौम बाबिल। इब्राहिम, कौन सी सोच तुम्हारे जहन में है? ये मुनाफा बख्श दिमाग, ठंड से मुंजमद जहन चाहते हो? मैं तुमसे दरखास्त करता हूं, आओजारी करता हूं। मेरा सकून तुम्हारे हाथों का खिलौना नहीं। पैगंबर, किस चीज ने तुम्हें इन खुदाओं के खिलाफ कर दिया है? वो सुनहरे दिन जिस घड़ी के आने का हम दिन रात इंतजार करते रहे, यूं खराब न करो। आज़र, क्या तुम जानते हो ये जमादात जो बुत हैं और जिन्हें तुम खुदा कहते हो, क्या तुम्हारे चाहने पर तुम्हारा कलाम सुनते हैं? क्या तुम्हें कोई फायदा या नुकसान देते हैं? हमने अपने बुजुर्गों को इन बुतों की परस्तिश करते पाया है। अगरचे ये बेअसर है, लेकिन इसके बावजूद हम इन्हीं की इबादत करेंगे। मैं इबादत करता हूं उस खुदा की जिसने मुझे पैदा किया, और वो हिदायत करता है अपने लुत्फ करम से। वही खुदा जो अपनी करामात से जब मुझे भूख लगे तो ग़िज़ा दे, जब प्यास लगे तो सैराब कर दे, जब बीमार हो जाऊं तो शिफा दे। वो खुदा जो मुझे मौत देगा और फिर वो जिंदा करेगा आखिरत की अबदी जिंदगी के लिए। और वही खुदा जिससे मैं उम्मीद करता हूं कि क़यामत के दिन मेरे गुनाहों को बख्श दे, और वो बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। मुझे तन्हा छोड़ दो, अगर हो सके तो बाबिल से दूर हो जाओ, चले जाओ। बर्बाद ने खुदाओं के बादशाह के साथ खयानत की है। झूठ है, झूठ है। झूठ है, ये आदमी सरापा झूठ है, रियाकार और फरेबकार। निकाल दो इसे दरबार से, फितनागरी करने आया है। दूर हो जाए यहां से, मलोन। चला जाता हूं वजीर मोहतरम, लेकिन उस वक्त तक नहीं जाऊंगा
जब तक बर्बाक को खयानत करास बाबिल के खुदाओं के बादशाह पर फाश न कर दूं और जंगल के वाक़े से उसे आगाह न कर। बाबिल के खुदाओं के बादशाह की कसम मार दूंगा तुझे। ले जाओ इसे। नमरूद मुअज़्ज़म, मुझे मारना है तो मार दे, लेकिन मुझे ये रात कहने का मौका जरूर दे। छोड़ दो इसे। ये कमीना बदजन है, इंतकाम का जहर उगल रहा है। इसका इरादा है कि फरमारवा की इज्जत को दागदार करे। इसे ये तकलीफ है कि फरमारवा आज़र नवाज हैं। वो मनहूस दिन जब मैं तफरीह की नियत से जंगल की तरफ निकला, मैंने देखा एक बुलंद आमद घोड़ा था जहां बाबिल की ये मलिका और ये मर्द पहलू नशीन थे। तेरी बीवी ने अपने बाप के खून का बदला लेने के लिए काम किया है नमरूद। हुकूमत बाबिल पर बर्बाद छाया हुआ है। इसने तुझे धोखा दिया है। ढील न देना इसे नमरूद, आजाद न छोड़ना इसे नमरूद। अच्छा ठीक है उवैस, सुन लिया। जा। चल जा यहां से। खेल में शामिल नहीं, मैं इस खेल में शामिल नहीं, मैं इस खेल में शामिल नहीं, अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं। खत्म करेगा तू इस खेल तमाशे को, खत्म करेगा बर्बाद। उवैस ने हमारा राज फाश कर दिया है। अगर तू अपने वादे से जरा भी पीछे हटा तो नमरूद के जरिए तुझे कत्ल करवा दूंगी बर्बाद। तलवार दो। तू अपने बाप और कबीले का इंतकाम लेना चाहती थी। ले ये तलवार, मार दे मुझे। ले ले इसे, मार दे मुझे। नहीं नमरूद मुअज़्ज़म, मुझे माफ कर दे। बाबिल के लोग मेरी फरमाबरदारी करते हैं और तुझे खुदा का बादशाह मानते हैं। मेरी मौत बाबिल की हुकूमत को मुतज़ल्ज़िल कर देगी। मुझे मत मार, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। चल जाओ, माफ किया। बाबिल को भी तेरी जरूरत है। तू अभी भी वजीर है। मैं जान की आवाज चाहता हूँ। चल खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। बादशाह मुअज़्ज़म, मैं अजीम बादशाह। मैं अगर तेरी जगह होता तो मैं इस रहम न करता। हम ईद की रस्में अदा करने जा रहे हैं, हमारे साथ आओगे या नहीं? सारा भी हमारे साथ आएगी। मैं बीमार हूं। तुम भी जाओ लूत।
लेकिन ये अल्लाह की मशीयत है, इसी में मसलियत है। तुम भी जाओ। أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله اے میرے عظیم اور مہربان خدا، نمرود کے بعد تیرا ہی بلند مقام ہے، تیرا ہی۔ کون ہے تو؟ کون ہے؟ میں خداؤں کو نابود کرنے والا ہوں۔ تیری آواز خوفناک نہیں، لیکن تیرا وجود تکلیف دہ ہے۔ میری آنکھوں میں بینائی نہیں۔ کیوں تو خداؤں کی ہونے والی رسموں کو چھوڑایا ہے؟ اگر نظر نیاز لایا ہے رکھ دے اور نکل جا۔ تو پھر کیوں نہیں کھاتے یہ کھانا؟ تو پھر کیوں اپنا دفاع نہیں کرتے؟ کیوں تم لوگ یہ خیال کرتے ہو کہ تمہارے ان بتوں کو میں نے توڑا ہے؟ اس لیے کہ تو ہی وہ واحد شخص تھا جو ان خداؤں کی رسومات میں شرکت کے لیے نہیں گیا تھا۔ ابراہیم بھتیجا ہے آزر بت تراش کا۔ بابل کے لوگوں نے بھی دیکھا۔ یہ کلاڑی تیری کلاڑی ہے ابراہیم۔ کلاڑی مجھے دے دو، ٹوٹ جائیں وہ ہاتھ جو اپنے بنائے ہوئے پیکر پر مارے، چاہے وہ آزر کے طائفے سے ہی کیوں نہ ہوں۔ آزر سے سنا ہے بابلیان کو ان کے بڑے بت کے کاندھے سے یہ کلاڑی ملی ہے۔ کیوں یہ گمان نہیں کرتے کہ یہ کام اس بڑے بت کا تھا؟ اس سے پوچھیں اس نے کیوں خداؤں کے ساتھ ایسا سلوک کیا؟ سب جانتے ہیں ان خداؤں میں کلام کی طاقت نہیں، یہ ساکت ہیں، زبان ہلا ہی نہیں سکتے۔ جی ہاں جانتا ہوں۔ تم ایسے خداؤں کی پرستش کرتے ہو جو بات ہی نہیں کر سکتے،
ایسے کو وسیلہ قرار دیتے ہو جو اس سرزمین اور قوم کے لیے نہ فائدہ مند ہے اور نہ نقصان دہ، لیکن تم وجود خدا کی حقیقت سے جو واحد ہے اور تمام نفع و نقصان کا مالک ہے غافل ہو گئے ہو۔ اف ہو تم پر کہ جس کی تم پوجا کرتے ہو۔ یعنی پھر یہ سچ ہے تیرا دعوی پیغمبری ابراہیم؟ بس کرو، برباد شہر سے باہر لوگوں کے سامنے فلک تک بھڑکتی آگ جلائی جائے، اس پیغمبر کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ڈھیر ساری لکڑیوں سے یہ پیغمبر جلا دیا جائے اسے۔ اطاعت میرے سرکار۔ جلانے کے مراسم میں سارے بابلیان شرکت کریں، سارے۔ اوبیس، میں ہوں شکست خوردہ حاضر، اس لڑائی میں تو جیتا، میں یہ اپنا بت خانہ بیچ رہا ہوں، اب تیرا کوئی رقیب نہیں رہا۔ اپنی زندگی کے سرمایے کو چلتا دیکھوں گا، اب شفاعت بھی میرے کام کی نہ رہی۔ میں نمرود کی نظروں سے گر گیا ہوں، اب تیری باری ہے کہ تو دوڑ لگا۔ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ ابراہیم، کہاں ہے تیرا وہ فریاد از خدا جو تجھے نجات دے اس بھڑکتی آگ سے؟ کہاں ہے؟ میں ہوں ابراہیم، اس یکتا اور پاک پروردگار کا پیغمبر۔ تم خدا واحد کے علاوہ جن کی پرستش کرتے ہو بے اثر اور پتھر کے بنے ہوئے ہیں، اور جنہیں تم اپنے ہی ہاتھوں سے تراشتے ہو۔ جان لو جن کی تم خدا واحد کے علاوہ پرستش کرتے ہو تمہاری روزی پر قادر نہیں۔ چھوڑ دو اپنے ان جھوٹے خداؤں کو، اپنی روزی کا مطالبہ خالق سے کرو اور اس خالق ہی کی عبادت کرو، نہ کہ مخلوق کی۔ اے عظیم نمرود، آگ بھڑک اٹھی ہے، کیسے اس بت شکن کو اس الاؤ میں ڈالیں؟
صبر کرو. میں بھی اس آگ کو برداشت کر سکتی ہوں. تو نے عورت کو آسمانی کہا ہے پیغمبر. تو نے کرامت بخشی ماؤں کو. وہ خدا جو کلہاڑی کی رت سے محفوظ نہ رہ سکے خدا نہیں. میں سارا اسی خدا کی پرستش کرتی ہوں جس کی تم کرتے ہو. مجھے بھی اس کے ساتھ جلا دو کیونکہ میرے پاس بھی کلہاڑی ہے. اور اب میں اسی کلہاڑی سے نمرود کے بت توڑوں گی. نمرود کی بت کھانے کو تہس نہس کر دوں گی. سارا چل یہاں سے. نہیں چھوڑ دو مجھے. تمہاری مدد کرنے آیا ہوں. میں ہوں ہوا کا فرشتہ ابراہیم، آیا ہوں تمہاری مدد کرنے. میں ہوں پانی کا فرشتہ ابراہیم، تمہاری مدد کرنے آیا ہوں. ہم تمہاری مدد کرنے آئے ہیں ابراہیم. میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. اے افلاک کے مرسلو، وہی بہترین کا احساس ہے. ابراہیم کے لیے گلزار بن گئی. یقیناً خدا ابراہیم کے ساتھ. میرا خدا پوری کائنات کا مالک ہے. نہ اس نے کسی کو چنا، نہ اس کو کسی نے چنا. زندگی اور موت اسی کی قدرت میں ہے. بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے، بڑا حلیم ہے. وہی جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، زندگی دیتا ہے اور لیتا ہے.
खुदाओं के बादशाह के हुक्म पर मौत की सजा के 2 मुजरिम पेश किए जाएं। चलो जिंदान की तरफ चलते हैं। इस बुतशकन को भी वहां ले जाओ। खोल दो इसे। तो आजाद है। तो आजाद है। इसे भी खोल दो। तू खुदा का नबी है। देख तुझे किसी माफ़रत नहीं है। ऐ इब्राहिम, मैं तेरी रिसालत पर ईमान लाता हूँ। मेरे लिए बख्शिश की दुआ करना। तमाम उम्र तारीकी में गुजरी, लेकिन अब ये लम्हा रोशनी में देख लिया, एक की जान ली, दूसरे को दोबारा जिंदगी बख्श दी। ओ जालिम, मेरा खुदा बड़ा अजीम है कि चांद और सूरज पर सिर्फ वही कादिर है। खुदावंद रोजाना सूरज को मशरिक से तुलू करता है। अगर तू कल सूरज को मगरिब से निकाल सकता है तो निकाल कर दिखा। खत्म करिए खेल। बाबिल से निकल जा। बाबिल तुझे नहीं चाहता। निकल यहां से। तू जमीन का खुदा है, आसमान के खुदा को मार कर दिखा। जल्दी से जाओ और तैयारी करो। हम बाबिल के बुलंदतरीन मीनार पर जाएंगे और इब्राहिम के खुदा से जंग करेंगे। तो बहुत ही चालाक है बर्बाद। सच कहा था तूने। मैंने तेरी बात पर बहुत सोचा। तूने कहा था नमरूद की हुकूमत एक मजबूत सतून। आज मैं बाबिल की ऊंचाई पर आया हूं ताकि अपनी कुदरत मुतलक बाबिल के लोगों को दिखाऊं। ऐसा तीर छोड़ूंगा कि इब्राहिम का खुदा मगलूब हो जाएगा और दूसरे हुकूमती सतून का तूने जो कहा था
गिरा दूंगा उससे। पिछले वजीर की हमारे मकाम और मंजिलत पर बुरी नजर थी। उस वक्त एक जवान सरदार था। उस वजीर को शिकस्त देकर तू अपनी काबिलियत, फहम और फरासत के मुताबिक उसका जानशीन बना और फिर तू गाफिल होकर बेराह रवि का शिकार हो गया। अगर तुझ पर रहम करूं तो फिर नमरूद नहीं रहूंगा। खुदाओं के बादशाह, क्या कहना चाहते हो? नमरूद एक खुदाई मतलब ताकत है, वजीर नहीं चाहता। ऊंचा है, बहुत ऊंचा है, मीनार का कह रहा। पर बाक कैसे अपने खुदाओं से विदा करे? खुदाया, मुझे बख्शे, खुदाओं का बादशाह, नहीं नहीं, मुझे बख्शे, अजीम नमरूद, मुझे माफ कर दे, नहीं नहीं, मुझे माफ कर दे, नहीं। सवाल हो गया। नमरूद छोटी सी चींटी से झगड़ रहा है। नए खुदा की तलाश करनी होगी। मैं और मेरे बाबा पूरी यकीन के साथ तुम्हारी रिसालत पर ईमान लाए हैं। वो तुम्हारे सामने आने से शर्मिंदा है, इसलिए मुझे भेजा है। एक मेहरबान को भेजा है।
शर्मिंदा हूं ये कहने से, लेकिन कहता हूं सारा के लिए क्या अच्छा शौहर हूं। मुझे रिसालत की यारी चाहिए। कबूल है? कबूल है। मैं इस शिर्क आलूद सरजमीन से हिजरत कर रहा हूं अपने खुदा की जानिब। वो मुक्तदर और ताना है बंदगान की इस्लाह और उनके उमूर का। इब्राहिम का गुजर कनान और मिस्र से हुआ। जमाना उनके साथ साथ रहा। फिरौन मिस्र के पास एक कनीज थी जिसका नाम हाजर था। हाजर सारा की कनीज थी। उस वक्त इब्राहिम ने हबरूद पहुंचकर घर बनाया और माश के लिए ज़रई जमीन खरीदी। सलाम सारा। इब्राहिम, यहाँ कौन सी चीज कम है? किसी चीज की नहीं। किसी आवाज को नहीं सुन रहे? कौन सी आवाज? किसी बच्चे की आवाज। बच्चे की आवाज के बगैर भी तो मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं सारा। नस्ल अंबिया उम्मतों के लिए जरूरी है। मेरी औलाद नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। इब्राहिम की नस्ल मुझसे नहीं, मैं अपनी कनीज हाजरा तुम्हें बख्शती हूँ। इब्राहिम की नस्ल इंसानों से बढ़कर है। ऐ खुदा के पैगंबर, औलाद का वजूद नबी का हक है। मेरे और तुम्हारे दरमियान इश्क हाकिम है। मैं तेरी आशिक हूं इब्राहिम। ये मत चाहो। मैं यही चाहती हूं।
اب میں سمجھا کیوں جبرائیل نے خدا کی جانب سے بشارت دی تھی، ایک بڑی قوم میری نسل سے وجود میں آئے گی۔ یہ خدا کا وعدہ ہے۔ میں حاجرہ سے بات کروں گی۔ لوط، کل رات میں نے خواب دیکھا، مردوں کا ایک گروہ آپس میں شہوت رانی میں مصروف تھا۔ تاریکی میں ڈوبی سرزمین اور وہ لانتی لوگ۔ جانتا ہوں خالق وحدہ لا شریک نے اس لیے تمہیں چنا ہے کہ صدون کی سرزمین پر فاسق و فاجر قوم کی طرف جا کر انہیں فاسد اعمال سے روکو۔ یہ کلام وہی ہے۔ اسی طرح جیسے ان کے چچا حضرت ابراہیم رسالت کے لیے چن لیے گئے۔ حاجرہ سے بات کر لی ہے۔ کیا کہا اس نے؟ اس دن جب نمرود کی آگ
خدا کے حکم سے میرے لیے گلزار بن گئی. پاک و مطہر اولاد کی خواہش تھی، جانشینی اور بقائے رسالت کے لیے. ایسا فرزند جس کی نسل سے عظیم ترین بندگان خدا پیدا ہوں. اسماعیل، اور اس عظیم سلسلے کا آخری پیغمبر احمد. میری سراہی پانی بھرا ہے پینے کے لیے. مجھے تیری مدد کی کوئی ضرورت نہیں اور نہ ہی تیری رہنمائی کی. مجھے کنیز نہیں چاہیے. تو میری کنیز نہیں، تو پیغمبر کی بیوی ہے، پیغمبر کی بیوی. میری محبت سے مایوس ہو گئے اے اللہ کے نبی، ترک کر دیا میری محبت کو. مایوسی شیطانی وسوسہ ہے، دھوکہ نہ کھانا. تمہاری محبت میرے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے، میری رسالت کے لیے. سارا، حسد کی آگ 100 گنا زیادہ ہے نمرود کی آگ سے. گلزار بنا دے اسے. نکال دو انہیں. ہاجر میری بیوی ہے، اسماعیل میرا بیٹا ہے. نہیں سارا، میں یہ نہیں کر سکتا. بار الہا، یہ ابلیس مردود نفرت کا بیج بو رہا ہے میرے رسالت میں. پناہ مانگتا ہوں میں. اپنے بیٹے اسماعیل اور بیوی ہاجرہ کو یہاں سے لے جا یروشلم کی طرف اور داخل کر دے عبادت کی سرزمین پر حجاز. تیرا پروردگار ان کا محافظ ہے تمام شر اور فتنے سے. رخصت کا وقت ہے ہاجر. خدا چاہتا ہے کہ تم یہاں رہو اور میں ابرون میں. اے خدا کے پیغمبر، آخر ہم یہاں سے کہاں جائیں؟
इस मकाम को सफा कहते हैं और वो चोटी है मरवा की। वही के दौरान जिब्रील ने इस बारे में बताया था। हम मर जाएंगे, इस गर्म सहरा में रहम करो पैगंबर। अपने बच्चे पर हर तरफ खुश्की और तपिश है। ऐ अल्लाह, इस मुकाम को अमन की जगह करार दे। मैं अपनी नस्ल को बैतुल हराम के करीब इस बंजर वादी में छोड़े जा रहा हूँ नमाज कायम करने के लिए। ऐ परवरदिगार, लोगों के दिल इनकी तरफ माइल कर दे और इसी के मुताबिक इन्हें रोजी दे, ताकि इस तरह ये तेरी नेमतों का शुक्र अदा कर सकें। मैं यहां हूं, मैं यहां हूं, तुझे महसूस कर रहा हूं, करीब से करीब, पहले से भी करीब। तेरी बारगाह की तपिश को महसूस कर रहा हूं। इस्माइल तेरा बेटा, उसकी जुदाई में बेताब हूं। इस्माइल जान से भी ज्यादा अजीज है। अब वो जवान हो गया है। सरजमीने हिजाज की तरफ लौट जा एक मर्तबा और अपने बेटे इस्माइल को आमादा कर कुर्बानी के लिए। नहीं, यकीन नहीं आता। नहीं, कनानी हूं इसलिए तो मुझसे ये चाहता है जो अपने फर्जंदों को आग में झोंक देते थे अपनी ख्वाहिशात के लिए, अपने जिगर गोशे को कुर्बान कर दो। ताकि हर कोई अपनी औलाद को कुर्बान कर दे। इस तरह तो नस्ल भी बाकी नहीं रहेगी। नहीं नहीं नहीं,
मुझे जाना है सारा, बुलाया गया हूं। ऊंट तैयार है दरवाजे पर। ठीक है। इंतजार कर रहा हूं आपका। खुशामदीद। ये कौन सी जगह है? जौहरम कबीला। मुसाफिर हो या सहरागर्द? मुसाफिर। मां, मेहमान आया है। इब्राहिम। हाजर। इस्माइल तुम्हारा बेटा। मेरा इस्माइल जवान हो गया है। जौहरम कबीले को फक्र है इसके वजूद पर। हाँ, जोरामियान तुम्हारे और इस्माइल के साथ कैसे हैं? जौहरों में उसे नेक कबीला नहीं देखा, हमें बहुत इज्जत दी उन्होंने। ये भी एक ही खुदा की इबादत करते हैं। हाजर, मैं कभी भी न समझ सका जब मैंने तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को इस तपते सहरा में छोड़ दिया और चला गया। न जाने तुम पर क्या गुजरी, लेकिन खुदा की रहमत पर मेरा ईमान था।
क्योंकि रब्बुल इज्जत का हुक्म था तुम्हारी हिजरत के लिए। कई साल पहले जब हम दोनों इस सहरा की जलती रेत पर तन्हा थे, सख्त गर्मी के दिन थे, प्यास की शिद्दत थी और हिजाज के जलते सूरज के ताजियाने थे। वो ऊंचाई उसका नाम सफा और वो दूसरी चोटी मरवा की, और उन दोनों के दरमियान हलाकत के करीब बच्चा। ये पानी जो पी रहे हो ए खुदा के नबी, समसम के कुएं से है। कल कुर्बानी का दिन हो खुदाए वाहिद के लिए। सबसे उम्दा जानवर कुर्बानी के लिए पेश करूंगा बाबा। कुर्बानी कुर्बानगाह में मौजूद है, मीना के पहाड़ पर। अपनी मां को अलविदा कह दो मेरे बेटे। हम सफर पर जा रहे हैं। इस्माइल। जी बाबा। तुम अंबिया के ख्वाब के बारे में कितना जानते हो? सच्चा ख्वाब समझता हूँ।
ख्वाब और बेदारी में वही के फरिश्ते ने हुक्म सुनाया उस रब्बे वाहिद का कि कुर्बानी दो मेरे लिए। ये फरमाया कि तुम्हें कुर्बान कर दूं। बताओ इस सच्ची वही में तुम क्या देखते हो? जैसा खुदा चाहता है अंजाम दें। आप मुझे साबरीन में से पाएंगे। बाबा, आपको जो हुक्म हुआ है उसे पूरा करें। बाबा, रस्सी को मजबूती से बांधना ताकि जान आराम से निकल सके। खंजर तेज हो ताकि मौत आसान हो जाए। माँ को मेरा सलाम पहुंचा देना, कहना वो मेरी ख्वाहिश पर मुझे सौंपी गई इस इलाही जिम्मेदारी के लिए तैयार हो गया था। फख्र करो ए पैगंबर खुदा कि खालिक दो जहां तुझसे राजी है। तू पैगंबर का बहुत अच्छा मददगार है नूर चश्म। क्या कर रहा है पैगंबर? बगैर सर का बेटा तेरे किस काम का? यूं तो तेरा कोई जानशीन नहीं रहेगा। लफ्ती जिगर ज़िबा करने ले जा रहा है। इस मुल्क की बरकत के लिए कुर्बान गाह की तरफ जा रहा है। वाह हो तुझ पर इब्राहिम, जौहर म्यान तेरे खून के प्यासे हो जाएंगे। बेटे का कत्ल वबाल जान बन जाएगा। ऐ पैगंबर,
ہو جا. وہ دن اور سال جو ساتھ گزارنے تھے میں موجود نہ تھا. اس آسمانی کلی کو کھلنے کو بھی نہ دیکھا تھا میں نے. اور آج تجھے قربان گاہ کی طرف لانا پڑا. یہ کلام وہی تھا بیٹا. میں نے کبھی بھی اللہ کے فرمان پر شک نہیں کیا. سمجھتے ہو؟ مجھے میرا چہرہ پھیر کر لٹانا بابا، تاکہ میری نظریں تجھے قربانی کے عمل سے روک نہ دیں. دل کو تھام کر رکھنا بابا. میرا اسماعیل تیری طرف آ رہا ہے. یہ فدیہ تیرے نام ہے یا رب، وحدہ لا شریک کے نام. ابراہیم، اسماعیل کو آزاد کر دے. اسماعیل تجھے بخش دیا گیا. اس طرح تو اس عظیم امتحان میں کامیاب ہوا. تیرے پروردگار کے نزدیک خداوند تمہیں اس کی جزائے خیر دے گا، اور نیکی کرنے والوں کے لیے یہ ایک کھلا امتحان ہے. اب خداوند قادر کے ہدیے کی قربانی کر، اور خدا اسماعیل کی جگہ اس ہدیے کو قبول کرتا ہے، اور اس کا نام نیک عمل میں یاد رکھا جائے گا آئندہ آنے والوں کے لیے. ابراہیم حبرون کی طرف لوٹ گئے. کئی سال گزرنے کے بعد اسحاق پیدا ہوئے، اور وہی الہی اللہ کے آخری پیغام کو بجا لانے کے لیے ابراہیم پر اتری، خدا کے گھر بیت اللہ کی تعمیر کے لیے. تو میرا جانشین ہوگا، اس قوم کا پیغمبر. تجھ سے احمد کی خوشبو آتی ہے، حلقہ رسالت کا موتی. ہمارا سلام سینہ بسینہ ان تک پہنچے گا. بابا، ہم اس کی تعمیر کر سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ عشق میں ڈوب جاؤ یا دنیاوی کاموں میں مصروف ہو جاؤ. میں عاشق ہوں بابا، خدا کا عاشق. بے شک میرے بیٹے، یہ وہ طاقت ہے جسے پروردگار نے ہماری روح میں بسایا ہے. ہمارا جسم روح کی اطاعت کرتا ہے. دو عاشقوں کی روح حکم دیتی ہے. لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک،
काबा, ये तौहीदी बुनियाद इब्राहिम खलीलुल्लाह और इस्माइल ज़बीहुल्लाह के हाथों तामीर हो गया। सलाम हो इब्राहिम पर कि जिन्होंने अपनी तमाम उम्र वक्फ कर दी तौहीद की राह में। सलाम हो इब्राहिम पर जिन्होंने खाने तौहीद की बुनियाद रखी। सलाम हो नूह पर, सलाम इस्माइल और इसहाक पर, सलाम हाजरा और सारा पर, और सलाम उन पर जो आज मनासिक हज बजा ला रहे हैं। इब्राहिम खलीलुल्लाह दूसरे उलुल अज़्म पैगंबर थे। उनके आसमानी सहीफे और उनकी याद अबद तक बाकी रहेगी। لا شريك لك